اللہ میں قریب گیا, قریب سے پتھر اٹھا کر کے لایا. آقا میں نے دیکھا میری بیٹی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ میری بیٹی میرے لیے بد دعا کرے گی, لیکن آقا جب میں نے کان لگا کر کے سنا آقا تو وہ آپ نے ملت اسلامیہ. ذرا غور کرتے چلے حضور کی زندگی کو, حضور کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیں. وہ مصطفیٰ جان رحمت آقا کریم نے ایک بڑے حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا. جب آقا نے اس نوجوان کو دیکھا سرکار نے دعا مانگ دی, اے پروردگار عالم اس نوجوان کو ہمارے لائے ہوئے دین کی توفیق عطا فرما. صبح کا سویرا نمودار ہوا. ذرا غور کرتے چلے حضور کی زندگی کو. جب صبح کا سویرا نمودار ہوا اللہ اکبر, آقا کریم نے نماز فجر پڑھائی. پڑھانے کے بعد وہی نوجوان حضور کے دروازے پر آ گیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ دروازہ کھولو. جب صحابہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی تحیہ قلبی آیا ہوا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں تحیہ کس لیے آنا ہوا؟ آقا کریم نے اپنی مزمل والی چادر تحیہ قلبی کو دے دی اور کہا تھا اے تحیہ قلبی اس چادر کو بچھا اور اس پہ بیٹھ جا. اللہ اکبر, ذرا غور کرتے چلیں. تحیہ قلبی نے اس چادر کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا, کہا آقا اس چادر کی جگہ ہمارے قدموں میں نہیں, آقا اس چادر کی جگہ ہمارے سر پہ ہے. آقا یہ چادر ہمارے سر پہ رہے گی. سرکار فرماتے ہیں تحیہ کس لیے آنا ہوا؟ تحیہ قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ کر لیجئے. سرکار نے تحیہ کو کلمہ پڑھایا, دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا تحیہ قلبی. تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا, تحیہ قلبی رونے لگے. کہا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے, آقا میں نے زندگی میں بڑے پاپ کیے ہیں. یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے میں بخشا نہیں جاؤں گا. سرکار فرماتے ہیں تحیہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تحیہ قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں. رب کا جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت صلاۃ و سلام پیش کیا. آقا غلام سے کہہ دو آنسو صاف کر لے, جب سے اس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تحیہ قلبی کو میرے سرکار نے خوشخبری سنائی. پھر تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا, تحیہ قلبی رونے لگے. آقا نے فرمایا تحیہ اب کس لیے رو رہے ہو؟ تحیہ قلبی عرض کرتے آقا میں نے ایک بڑا گناہ کیا, آقا میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے. یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے میں بخشا نہیں جاؤں گا. سرکار فرماتے ہیں تحیہ قلبی تو نے کون سا گناہ کیا؟ حضرت تحیہ قلبی اللہ اکبر مصطفیٰ کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع. تحیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے خاندان کا سردار تھا, آقا میں نے اپنے خاندان کی 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا. یا رسول اللہ مجھے افسوس نہ ہوا, آقا میں نے اپنی 6 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا. آقا میں نے اپنی 6 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے. آقا مجھے افسوس نہ ہوا. یا رسول اللہ ایک دن کیا ہوا, میری بیوی امی سے تھی. اللہ اکبر میں پڑھتے جا رہا تھا, میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اے میری شریک حیات اگر بیٹا پیدا ہو حسرتوں سے پال لینا, اگر بیٹی پیدا ہو گلا دبا کر کے مار دینا. یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی. آقا میری بیوی میرے ڈر سے اللہ اکبر اس
बच्ची की परवरिश करने लगी। या रसूल अल्लाह, मैं कभी अगर अचानक घर पे आया तो मेरी बेटी मुझे देखने को ना मिली, लेकिन या रसूल अल्लाह एक दिन जब मैं अपने घर पे परदेश से आया, आका मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से छोटी बच्ची की आवाज आई, कौन? कहा इस घर का मालिक है। अल्लाह अकबर। वो बेटी कहती है अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं तेरी लाडली बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। जरा गौर करते चले। अल्लाह अकबर। ताहिया कल्बी कहते हैं दरवाजा खोल। जैसे ही उस छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला, हजरत ताहिया कल्बी के कदमों को बोसा ले लिया उस बच्ची ने। ताहिया कल्बी कहते हैं मेरा गुस्सा, अल्लाह अकबर, गुस्से की वजह से चेहरा सुर्ख हो रहा था। आका मैंने उस अपनी बेटी को धक्का दिया, या रसूल अल्लाह, वो दीवार से लगी जा करके। आका फिर मैंने अपनी शरीक के हयात से पूछा, ऐ मेरी शरीक के हयात, ऐ मेरी रंजो गम की साथी, ऐ मेरी हमदर्द और ऐ मेरी हमसफर, ऐ मेरी बीवी, जरा इतना तो बता दे ये बेटी कौन है? अल्लाह अकबर। तो वो अल्लाह अकबर ताहिया कल्बी की बीवी ने कहा था, ऐ ताहिया इसे मार मत देना, ये तेरी लाडली बेटी है, इसे मार मत देना, ये तेरी बेटी है। ताहिया कल्बी कहते हैं अब मेरा गुस्सा अल्लाह अकबर आसमान पे पहुंच रहा था, मेरे गुस्से की वजह से मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। ताहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इंतजार करने लगा वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दूंगा। या रसूल अल्लाह, वो दिन कब आएगा कि जब मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा मार दूंगा। अल्लाह अकबर। ताहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती थी, आका वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, या रसूल अल्लाह, उसकी जगह हमारे दिल में बन रही थी। आका उसकी मोहब्बत ने अपनी जगह हमारे दिल के अंदर बना ली थी। या रसूल अल्लाह, वो मेरी बेटी इतना प्यार करती, आका जब मैं शाम को वापस आता वो मेरी बेटी कभी मेरे पैर दबाने बैठ जाती थी। आका जब मैं कभी अल्लाह अकबर परदेश से घर पे आता वो मेरी बेटी मेरे पैर दबाने बैठ जाया करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। अल्लाह अकबर। अपने हाथों से सर में तेल डालती थी, बालों में कंघा करती थी। आका बड़ी प्यार करती थी वो बेटी, बड़ी मोहब्बत करती थी। लेकिन या रसूल अल्लाह, जमाने के लोगों ने जब मुझे ताना दिया, मैं एक दिन जब बाजार में जा रहा था, मेरे खानदान के एक फर्द ने कहा था ताहिया हमारी बेटियों को जिंदा मार करके अपनी बेटी को हसरत से पाल रहा है, अपनी बेटी को बड़ी उम्मीदों से पाल रहा है। ताहिया कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब उसने मुझे ये ताना दिया, आका मैं ये ताना बर्दाश्त न कर सका। या रसूल अल्लाह, अब मैं सोचने लगा था वो दिन कब आएगा जब मैं अपने हाथों से इस बेटी को जिंदा दफन करूंगा। आका उसका ताना जब उसने दिया, मेरा चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अब मैं घर के अंदर आया, मेरा चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख था। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था, ऐ बाबा बता तो सही, आज तेरे चेहरे पे थकन के आसार लग रहे हैं। बाबा आज बता तो सही, आज तेरा चेहरा थका हुआ लग रहा है। ताहिया कल्बी अर्ज करते, आका वो मेरी बेटी इतनी मोहब्बत करती थी, आका वो बेटी इतना प्यार करती थी। या रसूल अल्लाह, जब मैं घर पे वापस आया, आका वो मेरे पैर दबाने बैठ गई थी। या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा हो गया जैसे सो गया हूँ। मेरी बेटी ने मेरे चेहरे पे चादर डाली, डालने के बाद अपनी माँ के आंचल में सो गई थी, लेकिन उसे ये न मालूम था आज की रात आखिरी रात है। उसे ये न मालूम था कि आज जिंदगी की आखिरी वक्त है। अल्लाह अकबर। ताहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब पूरी दुनिया सन्नाटे से सो रही थी, आका जब पूरी दुनिया पुरसुकूनी की हालत में सो रही थी, या रसूल अल्लाह, ऐसी हालत में मैं उठा, मैंने अपनी बेटी को उसकी माँ के आंचल के साये से उठाया। आका जब मैंने उसको उठाया था, उसकी जुबान से लफ्ज़ अब्बा निकला था। या रसूल अल्लाह, मैंने उसके मुंह को दाब दिया था। आका उसकी ये आवाज उसके गले में अटक
कर के रह गई थी। आका फिर मैं अपनी बेटी को लेकर के चला। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे पूछती रही, बाबा कहाँ लेकर के जा रहे हो? अरे बाबा कहाँ लेकर के जा रहे हो? अल्लाह अकबर। दाहिया कल्बी कहते हैं, बेटी दोस्त के यहाँ दावत में लेकर के जा रहे हैं। रात भर दाहिया कल्बी चलते रहे। अल्लाह अकबर। चलते चलते हजरत ताहिया कल्बी के पैर में कांटा लगा। अचानक पैर से खून बहना शुरू हो गया। वो बेटी इतना प्यार करती थी। ताहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरे पैर से खून निकला, मेरी बेटी ने कहा था, बाबा मुझे ऐसी दावत की जरूरत नहीं है, अरे बाबा घर लौट चलो। अल्लाह अकबर। तेरे पैर में खून निकल करके जो खाना मयसर होगा, मुझे उस खाने की जरूरत नहीं है, अरे बाबा वापस लौट चलो। हजरत ताहिया कल्बी कहते हैं, मैंने अपनी बेटी की कोई बात सुनी। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी को जंगल में लेकर के गया। मैंने अपनी बेटी को बिठा दिया। मैं अल्लाह अकबर, मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। मैं गड्ढा खोदता जा रहा था। मेरे चेहरे पे पसीना आया। मेरी बेटी ने अपने दुपट्टे से मेरे माथे का पसीना साफ किया और कहा था, बाबा तू बैठ जा, तेरा काम मैं खुद कर देती हूँ। ताहिया कल्बी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, वो अपने हाथों से अपनी कब्र तैयार कर रही थी। आका अपने छोटे हाथों से, आका वो अपने छोटे हाथों से अपनी कब्र खुद तैयार कर रही थी। मेरे सरकार रोते जा रहे, रोते जा रहे। उमर फारूक आजम ने कहा, ताहिया अपनी दास्तान को बंद कर ले, देखता नहीं है दोनों आलम का मालिक को मुख्तार रो रहा है। अरे सरा हुजूर की जिंदगी को प्यारे मुलाहजा फरमा। वो नबी अल्लाह अकबर जो जानवरों की आंखों में आंसू बर्दाश्त न करे, फिर इतना बड़ा जो वक्त गुजर गया हो उसको कैसे मुस्तफा बर्दाश्त करे? अल्लाह अकबर। जरा गौर करे। ताहिया कल्बी कहते, या रसूल अल्लाह, वो अपने हाथों से अपनी कब्र तैयार कर रही थी। आका जब कब्र खुद के तैयार हो गई, मैंने अपनी बेटी को बालों की तरफ से पकड़ा। आका मैंने उस गड्ढे में डाल दिया था। या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में डाला, आका ऊपर से मैंने मिट्टी डालना शुरू की। या रसूल अल्लाह, जब वो मिट्टी मेरी बेटी की कमर तक पहुंची, मेरी बेटी खेल समझती रही, लेकिन आका जब वही मिट्टी हमारी बेटी के सीने तक पहुंची तो मेरी बेटी ने कहा था, बाबा बाहर निकाल लो, दम घुटने लगा है। ताहिया कल्बी कहते हैं, मैंने अपनी बेटी की कोई बात न सुनी। अल्लाह अकबर। मिट्टी डालना शुरू की। वही मिट्टी जब मेरी बेटी की आंखों तक पहुंची, मेरी बेटी समझ गई थी कि अब ये मेरा बाप मुझे मारने वाला है, मेरा बाप अब ये मुझे मार देगा। तो उस बेटी ने हाथ जोड़ करके कहा था, अरे मेरे बाबा, अगर तुझे ये लगता है कि मैं तुझसे खाने का सवाल करूंगी, बाबा तो सौ के टुकड़ों में गुजारा कर लूंगी, लेकिन कभी तुझसे खाने का सवाल न करूंगी। अरे मेरे बाबा, अगर तुझे ये लगता है मैं तुझसे कपड़े का सवाल करूंगी, तो बाबा एक ही लिबास में पूरी जिंदगी बसर कर लूंगी, लेकिन कभी तुझसे कपड़े का सवाल न करूंगी। अरे बाबा, अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती है तो मुझे बता दे, मैं घर से निकल जाऊंगी। जब मुझे तेरे चेहरे की जियारत करने हो पड़ेगी तो मैं रास्ते में बैठ करके तेरे चेहरे की जियारत कर लिया करूंगी। ताहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी की किसी बात को न सुना। आका फिर मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, बाबा जरा इतना तो बता दे, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, मेरी कौन सी खता पे तू मुझे मारना चाहता है? ताहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी ये बेटी के जुमले हमारे दिल के अंदर जगह करने लग गए थे। आका फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बेटी के इन जुमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
सकता। आका फिर मैं करीब गया, पत्थर उठा करके लाया। अल्लाह अकबर, जैसे ही पत्थर का तस्किरा मुस्तफा ने सुना, आका की चश्मा ने नुबुव्वत बरसने लगी। अल्लाह अकबर, मुस्तफा की आंखों से आंसुओं का सैलाब नमूदार हो गया। अल्लाह अकबर, आका रोने लगे। उमर ने कहा था, दाहिया अपनी दास्तान को बंद कर ले, देखता नहीं है दोनों आलम का मालिक को मुख्तार रो रहा है। अल्लाह अकबर, सरकार फरमाते हैं, ऐ उमर खामोश हो जा। दाहिया फिर बता, तूने उस बेटी के साथ क्या किया था? दाहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं करीब गया, करीब से पत्थर उठा करके लाया। आका मैंने देखा मेरी बेटी ने हाथों को उठा दिया। या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था ये मेरी बेटी मेरे लिए बददुआ करेगी। लेकिन आका जब मैंने कान लगा करके सुना, आका तो वो आपको याद कर रही थी। सरकार फरमाते हैं, दाहिया वो बेटी क्या कह रही थी? दाहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी ने हाथों को उठा करके दुआ की और कहा था, परवरदिगारे आलम, कब तक ये बेटियां मरती रहेंगी? मौला, अगर तूने बेटियों को पैदा किया है, ऐ परवरदिगार, तो इन्हें जीने का भी अधिकार दे दे। मौला, अगर तूने बेटियों को पैदा किया है तो इन्हें जीने का हक दे दे। अल्लाह अकबर, उस बेटी ने दुआ की थी, ऐ परवरदिगारे आलम, आने वाले दिनों में एक तेरा महबूब बंदा आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी की खैरात अता फरमाएगा। दाहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसने ये दुआ की थी। सरकार फरमाते हैं, दाहिया जब उसने ये दुआ की थी तो मुस्तफा भी सुन रहा था और उसका खुदा भी सुन रहा था। जब ये तेरी बेटी की दुआ आसमान के हिजाबत के पर्दे से जाकर के टकराई तो 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह अकबर, दुनिया की बेटियों को ये खबर दे दी गई, ऐ बेटियों, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेटियों को बचाने वाला अब्दुल्लाह का लख्त जिगर, आमना के दिल का चैन मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवागर हो गया है। आक़ाए करीम जलवागर हो गए। मेरे सरकार फरमाते हैं, दाहिया अपनी बेटी की उस दास्तान को एक मर्तबा और सुना। आका ने 3 मर्तबा दाहिया कल्बी से उस दास्तान को सुना। मेरे आका रो रहे हैं, दाढ़ी तर हो गई मुस्तफा की। दाहिया कल्बी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अभी इतना कीजिए आका, मुझे उस बेटी से माफ करवा दीजिए। आका जब से मैंने उस बेटी को मारा है, या रसूल अल्लाह, चैन की नींद नहीं आई है। आका आंख लगती है तो मेरी बेटी ख्वाब में आकर के कहती है, बाबा मेरा कसूर क्या था? कौन सी गलती पे तूने मुझे कत्ल कर दिया? दाहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे उस बेटी से माफ करवा दें। आका करीम फरमाते हैं, दाहिया बता, कहां तूने बेटी को दफन किया? सरकार को दाहिया कल्बी ले गए एक मिट्टी के ढेर के पास। दाहिया कल्बी अर्ज करते, आका यही वो ढेर है जहां मैंने अपनी बेटी को दफन किया था। सरकार फरमाते हैं, ऐ बेटी बाहर निकला, परवरदिगार इस बेटी को जिंदा कर दे जो जाते जाते तेरे महबूब को याद करती गई है। परवरदिगार इस बेटी को जिंदा फरमा दे। अल्लाह अकबर, जरा गौर करे, वो बेटी इस हालत में उठी कि उसके चेहरे से, उसके सर से खून बह रहा था। उसकी जुबान पे जारी था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं, बेटी इसे माफ कर दे, ये तेरा बाप है। तो वो बेटी कहती है, आका मैं इसे माफ नहीं करूंगी, इसलिए कि इस बाप से ज्यादा मुझे प्यार मेरे रब ने अता फरमाया है। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में, आपकी वकालत में इसका गिरेबान पकड़ करके इससे पूछूंगी कि कौन सी खता थी, कौन सी गलती पर तूने मुझे माफ किया था, तूने मुझे कत्ल किया था। जरा गौर करें। सरकार फरमाते हैं, बेटी इसे माफ कर दे। देखती नहीं है कौन कह रहा है?
بیٹی کہتی ہے آقا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے معاف کر دیتی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بیٹی جا اپنے باپ کے ساتھ چلی جا۔ تو بیٹی نے کہا تھا آقا میں اپنے اس باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ سرکار فرماتے ہیں جا بیٹی چلی جا، یہ تجھ سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، تیری قدر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بیٹی تہیہ قلبی کے ساتھ میں گئی۔ اسی وقت میرے سرکار نے اعلان کیا تھا او لوگوں، جس کی 3 بیٹی ہوں اور وہ ان کی قدر کرے، ان سے محبت کرے، ان کی پرورش کرے، اچھے سے ان کا نکاح کر دے، مصطفیٰ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر جس کی 2 بیٹی ہوں، سرکار فرماتے ہیں وہ بھی اگر ان کی پرورش کرے اور ان کی قدر کرے، اچھے سے نکاح کرے، محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ تیسرے صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، آقا جس کی 1 بیٹی ہو، سرکار فرماتے ہیں اس نے بھی اگر اس کی قدر کی، اچھے سے اس کا نکاح کر دیا، مصطفیٰ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک صحابی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر کسی کی بیٹی نہ ہو تو، سرکار فرماتے ہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر جس کی 1 بھی بیٹی نہ ہو، اگر اس کے دل کے اندر بیٹی کی خواہش ہو، بیٹی کی آرزو ہو، اور وہ یہ آرزو لے کر کے مر جائے، قیامت کے دن محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ وہ تو اتنا سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔